Bismillahirrahmanirrahim. In lab number 8 of Electronics 1, we will discuss about the input and output characteristics of a common base configuration of BJT. BJT stands for bipolar junction transistor, and a common base configuration, as we know that BJT has a three terminals like emitter, base and collector. If the base is common to both inputs and output of the configuration is called the base configuration of BJT. The objective of this lab is to study and analyze the operation of BJT. The objective of this experiment is to explore the basic application of the bipolar junction transistor. To learn how the input voltage, output voltage and input current are related to common base configuration. To learn how the output current IC collector current varies with respect of collector to base voltage VCB for a fixed value of the input emitter current IE. That are used to design and circuit is variable DC power supply, bipolar junction transistor, NPN and maybe PNP, ammeter, voltmeter, resistor as well as Proteus software. Introduction to common base BJT. In common base, the base emitter is forward biased and the base collector junction is reverse biased. In the case of common base, the base terminal is common between the input and output side. In this configuration, the input is applied between the emitter and the base terminal, while the output is measured between the base and collector terminal VBC. For input characteristics, the emitter current IE and the base emitter voltage VBE are varied and VCB is fixed at output side. Here is the circuit of a input characteristics of a common base configuration. Connect the circuit as shown in circuit diagram of Fig 1. Measure the emitter current for the different value of the base to emitter voltage to gain the input characteristics of a common base configuration. Range of VE is equal to 0 to 15 voltage. अगर हम सर्किट्स को एनालाइज करें तो ये हमारे पास एक बीजेटी ट्रांजिस्टर है जिसमें तीन टर्मिनल्स है, एक बेस है, एक एमीटर और एक कलेक्टर है। अब अगर हम इस चीज एक ट्रांजिस्टर को बेस को अगर हम कॉमन कर दें बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट तो ये हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। अब अगर हमारे पास तीन टर्मिनल्स हैं जिस पे एरोस लगा होगा वो हमारे पास एमीटर टर्मिनल्स हैं और जो हमारे पास आउटपुट साइड पे है वो कलेक्टर है और जो कॉमन है वो हमारे पास बेस टर्मिनल है। अगर इन दो टर्मिनल्स E और B के दरमियान अगर हम वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करें तो हमारे पास VBE वोल्टेज आएंगे। अगर इसी बेस और कलेक्टर्स के टर्मिनल्स के दरमियान अगर हम वोल्ट मीटर को पैच करेंगे तो हमारे पास VCB आएगा। इट मींस VCB स्टैंड फॉर कलेक्टर टू बेस वोल्टेज एंड VBE स्टैंड फॉर बेस टू एमीटर वोल्टेज। अब यहाँ पे अगर हमने मीटर करंट्स को फॉलो करना है तो हमारे पास कंपेयर मीटर हम इसके सीरीज में लगा देंगे जो हमें IE करंट बताएगा। अगर हम यही कलेक्टर के सीरीज में अगर हम पेयर मीटर लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे IC आ जाएगा। अब हमने इनपुट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये करना है कि हमने आउटपुट को VCB को हमने फिक्स कर लेना है 0 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 5 वोल्ट भी रख सकते हैं, 10 वोल्ट भी रख सकते हैं, 0 वोल्ट भी रख सकते हैं। जब भी आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है तो आपने VCB की वैल्यू कोई भी फिक्स कर देनी है। वो कहाँ से VCC वैल्यू को इतना चेंज करना है कि जो आपको गिवन होगी। लेट्स से यहाँ पे 0 वोल्ट है तो आपको यहाँ पे इनपुट्स देने की जरूरत ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे VCB 0 आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे VCB 5 वोल्ट इंसर्ट करने को कहा गया तो फिर आपने इस तरह VCC की वैल्यू को एडजस्ट करना है कि यहाँ पे हमारे VCB की वैल्यू 5 वोल्ट या 8 वोल्ट जितने आपको यूजर डिफाइन करेगा तो आप उस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है कि VEE की वैल्यू को चेंज करना है और VBE की वैल्यू का फैक्ट देखना है विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर और IE की वैल्यू को देखना है। जो भी हमारे पास इनपुट का ग्राफ बनेगा वो IE और VBE के दरमियान बनेगा। VBE को हमने x एक्सिस पे रखना है और IE को हमने y एक्सिस पे रखना है। अब हमने क्या करना है VEE की वैल्यू जैसे यहाँ पे हम 2 वोल्ट रखते हैं, यहाँ पे 2 वोल्ट रखते हैं तो VBE की वैल्यू को हमने मेजर कर लेना है और IE की वैल्यू हमने मिली एम्पेयर में मेजर कर देनी है। इसी तरीके से हमने VE की वैल्यू 4, 6, 8 और अप टू 15 तक हम किसी भी वैल्यूज के दरमियान में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और VBE की वैल्यूज का और IE की वैल्यू के दरमियान हम ग्राफ बना कर सकते हैं। अब अगर इस चीज को एनालिसिस करें तो हमारे पास VBE की वैल्यू और IE की वैल्यू को हम अगर देखें तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ बनेगा जो कि हमारे पास ये सिस्टम्स को डिफाइन कर रहा है कि ये हमारे पास एक जैसे हम डायोड्स का ग्राफ आ रहा है इसी तरीके से सिमिलरली ऐसा ग्राफ आ रहा है जस्ट एक्सेप्ट ऑफ अ VCB वोल्टेज। अब अगर VCB की वोल्टेज को हमने 8 रखना है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इतनी वैल्यूज को VCC की वैल्यू को चेंज करेंगे यहाँ पे हमारे पास VCB की वैल्यू 8 हो जाए। देन हम क्या करेंगे फिर वही प्रोसीजर को
अगेन दोबारा रिपीट करेंगे, VE की वैल्यू 2, 4, 6, 8 एंड अप टू 15 तक करेंगे और BE और IE की वैल्यू को मेजर करेंगे और ग्राफ ड्रा करेंगे VB और IE के दरमियान। तो सिमिलरली इस तरह का कोई ना कोई हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास लैब टास्क 2 है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए तो हमारे पास इनपुट की वैल्यू फिक्स करेंगे। तो इनपुट की वैल्यू फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे IE की वैल्यू क्या की है, फिक्स की है। IE की वैल्यू हम कहाँ पे फिक्स करेंगे, किस तरह फिक्स करेंगे कि VE की वैल्यू इतनी चेंज करेंगे कि IE हमारे पास 1 मिली एम्पेयर आ जाए। यहाँ से हम एम्पेयर मीटर से इसकी वैल्यू को मेजर कर लेंगे। जब IE 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा तो हम इसको अब कांस्टेंट रखेंगे और इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, VCC की वैल्यू को चेंज करेंगे लेट्स से 2, 4, 6 अप टू 15 वोल्ट तक। उसके बाद VCB की वैल्यू देखेंगे, VBC या VCB इज सिमिलर। और इसके बाद हम IC यहाँ पे हम एम्पेयर मीटर लगा के हम IC की वैल्यू को मेजर करेंगे और जैसे ही हम IC और VBE की वैल्यू में ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ये इस सिमिलरली इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। तो इस सिमिलरली ग्राफ में हमारे पास 3 रीजन आएंगे। एक हमारे पास कट ऑफ रीजन जिसमें हमारे पास डायोड जो BJT हमारे पास कट ऑफ रीजन में काम करता है। उसके बाद हमारे पास ये सैचुरेशन रीजन आ जाएगा और ये हमारे पास एक्टिव रीजन आ जाएगा। तो इसी तरह हम IE की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर भी फिक्स कर सकते हैं, 8 मिली एम्पेयर भी फिक्स कर सकते हैं। ये हमारे पास तमाम ग्राफ बने हैं जिसकी वैल्यू से हम फिक्स किसी भी IE की वैल्यू को फिक्स करते हुए अपना आउटपुट ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। The next step is select the components and draw the circuit. Choose the component from a library and simulate the circuit. Use the power supply as an input circuit. Connect the voltmeter across the base emitter junction and base collector junction and measure the voltage. Connect the ampere meter series in the emitter and collect the junction and measure the values. Compare the observed value with the desired value and analyze the circuit. The deliverable of this lab experiment is simulation file and lab report.